हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजू सिंघल। आज मैं आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक पार्ट 2 के लेसन 8 के न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक्स लेकर आई हूँ। ये टॉपिक्स हैं NDA 3 एंड NDA 4 एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। Guys, as you know, this time CBSE made some changes in your syllabus, and these topics are recently introduced to your syllabus. That is why I am discussing these topics separately. Otherwise मैं इसे अपनी जो मैंने कंप्लीट लेसन 8 की वीडियो आपको दी है उसमें मैं इन्हें डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दिस टाइम हमारा टॉपिक है NDA 3 and NDA 4. Same PPT I am going to use right now. As you can see on screens, here is content. So this is your topic 4, National Democratic Alliance, that is the full form of NDA. First, second and third and fourth phases and issues of development and governance. Right? So हम अब इस टॉपिक पर आ जाते हैं। So here it is, National Democratic Alliance, NDA. The National Democratic Alliance is an alliance of Indian center, right and right-wing political parties led by the BJP. Its chairman was late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The alliance returned to power in the May 2014 general elections with a combined vote share of 38.5%. पहले मैं आपको इसकी थोड़ी इनिशियल चीज़ें बता देती हूँ कि बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट 1980 6 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। और NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट वाज फाउंडेड इन 1998 और करेंटली NDA ही इंडियन यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, जो कि स्वतंत्रता के बाद से 17 जनरल इलेक्शंस था गाइस, इसमें बीजेपी लेड NDA, दैट इज NDA 3 एंड NDA 4 ने सेंटर में सत्ता में आ गई। किस तरीके से? बाय विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ हाउ मेनी 543 सीट्स, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरीके से NDA पार में आई। After nearly 30 years in Indian politics, a strong government with an absolute majority was established at center. The BJP on its own won 303 seats, 303 सीट्स इसने लोकसभा में जीती, जो कि द बिगेस्ट नंबर ऑफ एनी सिंगल पार्टी हैज़ वॉन इन द लोअर हाउस सिंस 1985। और हम सबको पता है कि 1985 में जबकि कांग्रेस ने पूरी तरीके से इलेक्शन को जीत लिया था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, और मिस्टर राजीव गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। वही उतनी ही सफलता 2019 में बीजेपी ने भी दिखाई। बेस्ड ऑन tumultuous success of the BJP in 2019, social scientists have started equating the contemporary party system with the BJP system, where an era of one-party dominance like the Congress system has once again appearing on the democratic politics of India. किस तरीके से हमने देखा कि शुरू से
कांग्रेस ही बार बार पावर में आ रही थी। पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि सबको पीछे छोड़कर एनडीए आगे आई। A major changes in Indian politics after 2014 is the shift from caste and religion based politics to development and governance oriented politics। हुआ क्या, यदि हम ये कहें कि कास्ट रिलीजन पे बेस्ड पार्टी है, ऐसा नहीं है। यदि केवल कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर ही इस पार्टी को जीतना होता तो इतने वोट्स नहीं मिलते। इससे क्या मतलब हुआ, हर जाति, हर धर्म, हर एज ग्रुप एंड एजुकेटेड अनएजुकेटेड, देश के हर तबके ने इसको सपोर्ट किया विद इट्स प्री इंटेंडेड गोल, सबका साथ सबका विकास। यही तो हुआ। The NDA 3 government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance accessible to the masses, such as प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना। यदि हम देखते हैं कि ये जो योजनाएं सरकार ने लागू की, तो वास्तव में हम देख पाते हैं कि ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हुई हैं, है ना। स्वच्छ भारत अभियान से हम सभी जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि गैस के लिए है, गांव गांव में कुकिंग गैस गई और महिलाओं को आराम हुआ। और जन धन योजना, दो कॉल्ड NDA 3 and NDA and the BJP-led coalition of 2014 was largely different from its predecessor coalition government, जहाँ की the previous coalition were led by one of the national parties. The NDA third coalition was not only steered by a national party, that is BJP, it was also dominated by BJP with an absolute majority of its own in Lok Sabha. It was also called a surplus majority coalition. In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition politics, which could be seen from one party led coalition to one party dominated coalition. Such a big thing. The 2019 Lok Sabha elections, that is, I told you, the 17th since independence, once again brought back BJP-led NDA, that is NDA 4, to the center of power by winning more than 350 seats out of 543. साथ ही साथ अब देखते हैं कि कुछ योजनाएं भी लागू की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, आयुष्मान भारत योजना, एटसेट्रा। फिर आ जाता है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ऑल दीज स्कीम्स जिनके बारे में अभी हमने बात की है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, all these intended to take administration to the doorsteps of the common man by making the rural household, particularly the women, real beneficiaries of the central government schemes. The success of these schemes could be seen from the results of 2019 Lok Sabha elections, where the voters across state, caste, classes, communities, gender and religions brought back the issues of the development and governance to the center stage under the BJP-led NDA government, characterizing the current change with सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। पहले था सबका साथ सबका विकास, उसके बाद जब सेकेंड टाइम बीजेपी ने फिर से इलेक्शंस को जीता तो हम कह सकते हैं सबका विश्वास, राइट।
सो ये दो हमारे टॉपिक्स थे। क्योंकि ये दोनों अभी हमारे सिलेबस में लेटली इंट्रोड्यूस हुए हैं और करंट गवर्नमेंट पर बेस्ड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड इसका रेशियो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में रहेगा और आएगा भी ज़रूर। वैसे भी आजकल बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको इस बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो थोड़े मेन क्वेश्चंस हैं आपको पता होने चाहिए, कि जैसे कि कब हुई बीजेपी की स्थापना, आपको पता होना चाहिए 6 अप्रैल 1980। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए, या आपके आपके लीडर्स हैं उनके फ़ोटोज़, उनकी द्वारा चलाई गई सारी योजनाएं, स्कीम्स। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कब जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को, तो 2014 एंड 2019। और who is the dominant party of NDA coalition government? Obviously you can answer BJP. साथ ही साथ what are the pre-intended goal and post-intended goal of the NDA government? तो pre-intended goal अभी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, सबका साथ सबका विश्वास। एंड post-intended goal सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और हमें सारी वेरियस स्कीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि पीपल के वेलफेयर के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की जो यात्रा है वो कैसी रही, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक आपको पता होना चाहिए। देन मेजर चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स विच टुक प्लेस आफ्टर 2014। तो मेजर चेंजेस वही होंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है आफ्टर 2014 इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, जो ही मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताया है। आपको इसी को ही डिस्क्राइब करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप it will be a great help to you, and just go through my all other videos also. Subscribe my channel if you're not done right till now, and like them and share with your friends. All the best. थैंक यू सो मच। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मैंने अपनी डिटेल वीडियोस कराई हैं उसमें मैंने सभी कार्टून्स को भी अच्छे से डिस्कस किया, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस। यदि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से उन कार्टून्स को आपके साथ डिस्कस करूं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करें, तो यू कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट, आई विल डू दैट अगेन वन बाय वन। आई विल टेक द पिक्चर्स एंड डिस्कस देम विद यू। ओके, बाय बाय।